Hello students, in the previous video we study about the point sized, a very small sized object and its image formation by a plane mirror. But in second part we will study about the extended or large sized object. Means एक बड़ा object है तब उसकी image कैसी बनेगी. First of all we draw a plane mirror and this is the polished surface of a plane mirror, and when we put, suppose we are standing or put any large sized object on a surface. AB means the object, arrow indicates the head and this side indicates the foot. Now according to law of reflection, two rays are arised from the object, and after the meeting of these two rays image is formed. Means for the image formation two rays are compulsory. First of all we draw a normal ray, and when this ray perpendicular to the surface or makes the moves on the normal ray, then it moves back after reflection on the same path and now makes a angle. Incident ray makes angle of reflection with the normal, angle of incidence equal to angle of reflection. Now we draw second ray. First ray from this point, this is the same normal and moves back on the same angle. Now second ray makes angle of incidence with the normal and reflected ray makes angle of reflection with the normal. Now these rays diverge from each other, means not meet at a point. Now we start to move that line in the backward direction and this ray on the backward direction. This forms the arrow, means upper part of the image. Now this ray also moves in the backward direction and this ray also move in the backward direction. Now where these two rays meet at a point, image is formed. This is the image formed by a large sized object. Characteristics of this large sized means object size is this, image size also same, means same size of image at same distance and laterally inverted. Now what is lateral inversion? Lateral inversion means in which left side appears to be right and right side appears to be left. That is the lateral inversion, जिसमें हमें जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट दिखाई दे और राइट है वो लेफ्ट दिखाई दे. दैट इज द लेटरल इन्वर्जन. मीन्स अगर हम शीशे में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड है वो राइट और राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर मीन्स प्लेन मिरर सेम साइज, सेम डिस्टेंस, सेम हाइट एंड laterally inverted. Means behind the mirror laterally inverted. जितनी डिस्टेंस सामने होगी उतनी ही बैकवर्ड. सपोज करो कि आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 4 मीटर दी हुई है मिरर से, तो इमेज की भी 4 होगी. अगर आपसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस 4 है तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज की कितनी होगी. 4 + 4 मीन्स 8. जितनी ये डिस्टेंस होगी ये उसकी डबल होगी. Now next exercise, reflection of light by a spherical mirror. Spherical mirror means the part of a sphere of a hollow sphere from which reflecting surface is used for the image formation. That is the spherical mirror. Now part of the spherical mirror which is used for the reflection. जो part हम reflection के लिए use करते हैं that is the aperture, and line passing through the center of the aperture is known as the principal focus.
and center of the aperture from which principal axis passes is known as the principal pole, and center of the hollow sphere is known as the center of curvature. Half point of the center of curvature and pole, that is known as focus. Distance between the pole and focus is known as the focal length, and distance between the pole and center of curvature is known as the radius. अब जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करती है, मान लो ये हमारा कौन सा है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। तो जिस पॉइंट पे ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पे मीट करेगी उसे कहते हैं हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये था कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए ये मीट कर रही है। और जो डाइवर्जिंग मिरर होगा मीन्स उसमें रेज स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, उसमें वो रेज ओपोजिट साइड मीट करेगी जिस पॉइंट पे, उसे कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। मीन्स इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी। और जो कन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, और जो कनकेव है उसको कन्वर्जिंग मिरर। अब हमारे पास कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिसके बेस पे हम इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे अच्छा, कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं, जो भी हमारे डिश वगैरह हैं, लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्स करने के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल मिल सके, ठीक है। कोई भी टाइप की रेडिएशंस हैं उनको एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब देखो कि कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि एक फर्स्ट रूल क्या है इसका, कि हमारे पास ये है पोल, सेंट्रल पॉइंट इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका हाफ क्या हो गया, फोकस। कि कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल मूव करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट होगी। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है कि हमारे पास कनकेव मिरर है और ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रूल हमेशा याद रखना कि जितनी डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में होगी उतनी ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। सेकंड रूल क्या है, ये क्या थी, पैरेलल जाने के बाद फोकस से, और अगर हम फोकस से पास आउट करते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल मूव करेगी। थर्ड रूल है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और फोर्थ रूल क्या है हमारे पास, कि अगर कोई भी रे है वो पोल पे स्ट्राइक कर रही है, जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो आपने करने हैं किसी भी इमेज फॉर्मेशन को करने के लिए, क्योंकि इन चार में से हम कोई भी दो रूल यूज़ करेंगे जिसके बेस पे हम इमेज बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन रूल क्या होना चाहिए कि जितनी डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में होगी उतनी ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस सारी इक्वल नहीं होगी तो आपकी इमेज भी सही नहीं बनेगी। कोई भी इमेज ड्रॉ करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है और रेज के लिए एरो मेंशन करनी ज़रूरी है कि रेज किस साइड से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। अब यहाँ पे देखो कि आपको दिया हुआ था कनकेव मिरर क्या करता है कि सन रेज को फोकस करके एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है जिससे हमारे पास उसकी यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। इसको कहेंगे फोकस। और
डाइवर्सिंग में सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्स हो जाती हैं और यहाँ पे मिलेगी। जो फोकस होता है वो हमेशा रेडियस का हाफ होता है। तो ये थी आपकी ये एक्सरसाइज जिसमें से आपको इन सारी डेफिनेशंस को लर्न करना है और ये डायग्राम लर्न करने हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।